children, welcome to the video lesson. I am your social science teacher. Today I am going to continue the topic that is from your class 6th history textbook. The topic is vital villages and thriving towns. In a previous class we discussed about major topics. The main topics was that major changes. Two major development around this time. One is increasing use of iron. Next one is developing in farming, mainly in irrigation. Iron. Around 3000 years ago, the use of iron began in our subcontinent. Around 2500 years ago, there is an evidence of growing use of iron tools. These includes axes for cleaning forests and iron ploughshares. The ploughshares was useful in increasing agriculture production. The large collection of iron tools and weapons found in megalithic burials. Megalithic burials, that's mean a big stone. And then other changes in agriculture. They use iron ploughshares instead of wooden ploughshares, and they transplanting paddy. The growing use of iron ploughshares better than wooden ploughshares. People began transplanting paddy. Then main topic was we discussed megalithic burials. These are stones bolted called megalithic burials, which mean big stones. They were carefully arranged by people to mark the burial sites. Timeline. This practice began about 3000 years ago. This practice was prevalent throughout the Deccan, South India, in Northeast and in Kashmir. Next is developing in farming. Kings and kingdoms exceeded because of the supporting of flourishing village. जो किंग एंड किंगडम जो है फ्लोरिशिंग विलेज से वो डिपेंड करते थे. सो व्हाट इंक्रीज प्रोडक्शन? People began transplanting paddy instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout. Saplings were grown and planted in fields. This led to increased production as many more plants were survived. And main topic was that संगम literature. संगम literature में बहुत सारा लिटरेचर मेंशन किया है. जो संगम लिटरेचर जो है कंपोज्ड बाय तमिल लिटरेचर. संगम मीन्स असेंबली. उसमें मेनली सदर्न ग्रुप पीपल्स के बारे में मेंशन किया गया हु लिव्ड इन द विलेजेस इन एंशिएंट टाइम. देयर वर mainly three kinds of people survived in southern group as well as northern group. southern group में जो है main three kinds of people से Vellalar, Ulavar and Kadesiya and Adimai. In northern place, Grama Bojika, Grahapatis and Dasha Karmakara. Vellalars जो है लार्जेस्ट लैंड ओनर्स थे, और जो उलवर जो है नॉर्मल पीपल्स थे, एग्रीकल्चर जो करते थे. उनके पास स्मॉल लैंड था, पर स्मॉलर लैंड ओनर है, बट दे अपने लिए वो प्रोटेक्ट करते थे. और लास्ट ग्रुप इज मेन ग्रुप वाज कडेसिया एंड आडिमे. दे आर लैंडलेस लेबरर. दे मेनली स्लेव्स का काम, स्लेव का जैसा उनको रखा जाता था, जो वेल्लालार के ग्रुप में ये काम करते थे. एंड नॉर्दर्न ग्रुप ग्राम पोजेगा एज वेल, जैसे कि सदर्न ग्रुप में वेल्लालार जैसे थे लार्जेस्ट लैंड ओनर, उसी तरह जो है नॉर्दर्न ग्रुप में ग्राम पोजेगा जो है लार्जेस्ट लैंड ओनर है, और गृहपति स्मॉलर लैंड ओनर, एंड दासा एंड कामगारा जो है लैंडलेस लेबरर. इनके सिवा और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन्स, वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, जैसे पॉटरी बनाने वाले, ये सब भी ग्रुप सर्वाइव करते थे. फाइंडिंग अबाउट सिटीज़. जैसे सिटीज़ में कैसे रहते थे पीपल, कैसे सर्वाइव करते थे, इसके जरिए हम लोग पता चलता था, जैसे कि स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी. ये 4 वे के जरिए जो है हम टाउन के पीपल कैसे सर्वाइव करते थे उनके बारे में हम लोग पता करे थे. जैसे कि स्टोरीज इन द मेनली द जातका स्टोरी. जातका स्टोरी इज ऑर्डिनरी पीपल कंपोज करे थे. लेटर बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उनको प्रिजर्व करे और उनका प्रेजेंट भी करे थे. और नेक्स्ट वन इज ट्रैवलर. एंशिएंट टाइम में बहुत सारा ट्रैवल चलता था, जैसे कि सेलर्स बहुत कंट्री अराउंड अक्रॉस आते थे, और उन्होंने बहुत सारा पोर्ट्स के बारे में मेंशन करे. उसके जरिए जो है इन एंशिएंट स्टेज में क्या हुआ करके हम लोग पढ़े थे. एंड नेक्स्ट वन इज स्कल्पचर. स्कल्पचर प्लेज अ वाइटल रोल इन एंशिएंट टाइम. स्कल्पचर के जरिए जो है हम लोग पता करे थे. और नेक्स्ट वन इज मेन आर्कियोलॉजी. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉइन्स. Wealth was measured in terms of coins. Archaeologists has found several thousands coins belonging
to this period. The earliest coin were पंचमार्क coins. हम जो जनपदास लेसन में भी पढ़े थे पंचमार्क coins. पंचमार्क coin जैसे कि उसमें इंस्क्राइब नहीं किया जाता है, उसमें एक स्टैम्प और डाइज के जरिए जो कुछ भी अपने जो किंगडम के कुछ सिंबल्स राजा के सिंबल्स को उनको स्टैम्प किया जाता था. Mainly they were not inscribed. They were in use of about 500 years. What are पंचमार्क coins? The पंचमार्क coins mainly rectangular shape, sometimes square and round also. तो इसको कैसे प्रिपेयर करते थे? पंचमार्क coins को कैसे प्रिपेयर करते थे? Either cut of metal sheets को कट करके बनाते थे और made out of flattened metal globules. ग्लोबल जो है स्मॉल एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी है और इसमें जो है मैंने पहले बताई उसको स्टैम्प किया जाता था, इंस्क्राइब नहीं किया जाता था. इंस्क्राइब वाले उसमें लिखा जाता है, उसमें जो है इंस्क्राइब नहीं था, स्टैम्प वाला कॉइन था. द कॉइन्स वेर नॉट इंस्क्राइब्ड, दे वर स्टैम्प विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस. ये तो कैसे स्टैम्प किया जाता था? कोई सिंबल्स से डाइस के जरिए नहीं तो पंचेस के जरिए इसको स्टैम्प किया जाता था. These coins are found over most part of our subcontinent. They remained in circulation till the early centuries of CE. ये जो CE means Common Era. Common Era में ये 500 years तक subcontinent में ये इसका जो प्रयोग किया गया था. Not only the coin used that time, other means of exchange also in the earliest time, that is barter system. बार्टर सिस्टम भी वो जमाने में बहुत चलता था, जैसे कॉइन भी चलता था और बार्टर सिस्टम भी. उसको जो है एक संगम लिटरेचर का पोएम में मेंशन किया है, आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया गया वो पोएम, आप पेज नंबर 93 में वो पोएम दिया गया है. और नेक्स्ट टॉपिक सिटीज़ विथ मेनी फंक्शन. ऐसे भी बहुत सारे सिटीज़ है, वो वेराइटी रीजन्स के लिए वो इम्पोर्टेंट माना जाता है. वैसे एक सिटी का नाम है दिया गया है आपकी किताब में, जैसे कि मथुरा. जैसे मैंने बोला था कि कुछ सिटीज़ जो ज़माने में जो है बहुत सारे चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंस हुआ करता था, उसमें एक मेन सिटीज़ नाम है मथुरा. वेरी ऑफन सिंगल टोन इम्पोर्टेंट ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन. जैसे मेंशन है मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स. जो मथुरा जो सिटीज़ है वो 2005 ईयर्स अगो वो मेन सेटलमेंट सिटीज़ हुआ करता था, क्योंकि इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it was located at the crossroads of two major trades and route. क्यों इतना इम्पोर्टेंट सिटीज़ वो सेटलमेंट हो गया था और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट जल्दी वो सेटलमेंट हुआ था? क्योंकि वो दो मेन रोड्स जो हैं उसमें लोकेटेड था, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो मेन रूट जो है मथुरा को जो है बहुत बड़े सेटलमेंट एरिया बनाया गया था 2500 ईयर्स अगो. These were fortification around the city. जैसे मैं पहले बताया था कि जनपदास जो महाजनपदास बने थे, जब किंग्स जो है अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनाए थे अपने सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसमें जो है मथुरा भी एक मेन सिटी हुआ करता था, जो बहुत बड़ा फोर्टिफिकेशन वॉल्स भी उस सिटीज़ अराउंड बनाया गया. एंड सेवरल श्राइन्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडिंग फूड फॉर पीपल इन द सिटी. क्योंकि मथुरा जो है मेन प्लेस में लोकेटेड था, सो अराउंड द फार्मर्स जो हैं विलेज जो सिटीज़ के अराउंड जो विलेजेस में जो फार्मर्स और हेडर्स थे वो सिटीज़ पीपल के लिए फूड्स प्रोवाइड करते थे. जैसे कि जो सिटीज़ जो है फ्लोरिशिंग विलेज से डिपेंड करता था, इसलिए जो मथुरा जो है वो बहुत फेमस हुआ करता था. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट स्कल्पचर्स इन मथुरा. जैसे हमने पहले बताए थे कि जो विलेज और सिटीज़ बारे में कैसे हम लोग जाने जाते हैं, स्कल्पचर्स आल्सो. सो मथुरा में जो है बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स पाए गए हैं. मथुरा वॉज ऑल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड. और कैपिटल अराउंड 2000 years ago मथुरा became the second capital of कुशानस. कुशानस जो है बहुत बड़े एम्पायर्स थे, तो जो मथुरा जो है उनका सबसे सेकेंड कैपिटल सिटी वो माना जाता था. एंड third, another main reason is that it is an important religious center. Mathura was also religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and important center for worship Lord Krishna. अभी भी जो लॉर्ड कृष्णा का जो वर्शिप प्लेस है वो मथुरा माना जाता है, वो important religious center is Mathura. Several inscriptions on
surface stone slabs and statues have been found in Mathura. Several small inscription माने जो छोटे छोटे लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया गया है जाते हैं, वो जो सरफेस जो है मथुरा में बहुत पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं मंदिर में, टेम्पल्स में, कुछ होली प्लेसेस में एक छोटा स्लैब्स में लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, जो मेंशन किया जाता है कि राजा ने किसको गिफ्ट्स दिया और ये जो स्टैचू किसने बनाया और ये पैलेस किसने बनाया करके लिखा जाता है ना। उस तरह जो है बहुत सारा स्कल्पचर्स और स्टोन्स, स्लैब्स और स्टैचूज मथुरा में पाया गया है। दिस आर जनरली शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, जैसे कि बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत जनरली छोटा छोटा इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। जैसे कि रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स, जैसे कि रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को किंग्स और गिफ्ट दिया जाता है ना, उनको उनमें इंस्क्राइब किया गया है, छोटा छोटा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। एक गिफ्ट किसको दिया गया है वो भी मेंशन किया गया है, जैसे कि दिस गिफ्ट्स वर मेड बाय सो एंड सो, जैसे कि किंग्स एंड क्वींस, merchants and craft persons who lived in the city. Inscriptions in Mathura mention not only mention the gifts, और भी बहुत सारा इंस्क्रिप्शन इसमें मेंशन किया गया है, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, परफ्यूम मेकर्स एंड पॉटरी मेकर्स। ये क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में भी ये इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और वो ज़माने में जो क्राफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, सो हम लोग क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। Next topic is crafts and craft person. We also have archaeologist evidence for crafts. Many archaeologist evidence है हमारे पास कि वो ज़माने में जो crafts और crafts person जो है बहुत survive करते थे करके। This includes extremely fine pottery called northern black polished ware, shortly NBPW. जैसे एक archaeological evidence में बहुत important एक pottery के बारे में पता चला है कि the pottery name was northern black पॉलिश्ड वेयर, उसके शॉर्ट फॉर्म में NBPW, N फॉर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। एक पॉटरी है, वो मेनली नॉर्दर्न पार्ट्स में पाया गया है। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द earthenware टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज स्किल। जो ये पॉटरी जो है मेनली वो बहुत ब्लैक, जैसे बोलेंगे ना ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। इतना ब्लैक क्यों हो जाता था, जैसे कि आप जानते हैं ना, पॉटर जो पॉटरीज बनाते हैं वो हाई टेम्परेचर में जो है उनको पकाते हैं। जो ये जो पॉटरी है वेरी हाई टेम्परेचर में वो एक्सपोज होता था, इसीलिए जो पॉटरी जो है मेनली ब्लैक कलर का हो जाता है, उसका सरफेस जो है ब्लैक कलर का हो जाता था। एंड दिस रिजल्टेड इन ब्लैकनिंग ऑफ आउटर सरफेस ड्यू टू हैवी टेम्परेचर। ये फाइन ब्लैक स्लिप वाज आल्सो अप्लाइड ऑन दिस which gave the pottery as a mirror like shine। ये पॉटरी में जो है एक ब्लैक कलर का कुछ स्लिप्स और मिलाया जाता था कुछ किस्म के, उससे जो है ये जो पॉटरी का सरफेस जो है मिरर जैसा उसका जो चमकता था। एंड आर्कियोलॉजी एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। इन प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि बहुत सारा एविडेंस सर्वाइव नहीं किया गया क्योंकि मे बी वो मड से बनाया गया होगा या टैग से, सो बहुत सारा एविडेंस जो है नहीं मिला है। और बट ये जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसका जो एविडेंस मिला है टेक्स्ट और इसकी आर्कियोलॉजिक्स में, इसके सिवा भी हम लोग बहुत सारे जरिए से हम लोग पता चला, जैसे कि टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट से भी पता चला कि इन एंशिएंट टाइम में पीपल कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे। टेक्स्ट टेल अस दैट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्लॉथ वाज इम्पॉर्टेंट। टेक्स्ट से पता चला कि वो ज़माने में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जैसे कि वाराणसी और इन सदर्न साइड में जो है मदुरै, ये दो प्लेस जो है मेंशन किया गया है। और इसमें जो टेक्स्ट में क्लॉथ्स किसने बनाए, बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन द सेंटर। जो क्लॉथ्स बनाए जाते थे वो जहाँ में जो है मैन भी और वुमेन भी दोनों भी काम करते थे। ये जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो मेनली डबल हैंडेड वाला एक जार था। ये जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है डबल हैंडेड जार और एक टॉल था, इसमें जो मेनली वो लिक्विड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखते थे। मेनली जो है ऑयल वाइन को जो है प्रिजर्व करके रखे थे। और जो वो ज़माने में जो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो मर्चेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसमें श्रेणीज का रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो उन्होंने एक श्रेणीज बनाए। नेक्स्ट टॉपिक श्रेणीज।
Many craft persons and merchants now formed association known as Shrenis. क्योंकि पहले जो है बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन थे जो है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, जो एसोसिएशन का नाम ही है श्रेणीज। तो एसोसिएशन बहुत सारा काम किया करता था। दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procuring raw materials, distributing finished goods, and these श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। जो श्रेणी जो है बहुत सारा काम किया करता था, जैसे कि उनको जो वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दिया जाता था और रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे और जो फिनिश्ड गुड्स को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जो पूरे ट्रेड्स को वो ऑर्गेनाइज किया करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड बैंक वेयर, और श्रेणी जो है बैंक के जैसे भी काम करते थे, जैसे कि विच रिच वुमेन एंड मैन जो है अपने पैसे को जो है डिपॉजिट करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड, जो रिच वो टाइम के जो रिच मैन एंड वुमेन जो है बहुत सारा पैसा को जो है श्रेणीज के पास डिपॉजिट करते थे, एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न, और जो वो डिपॉजिट करते थे जो इन्वेस्ट मनी को वापस वो जो उनको रिटर्न भी किया करते थे, और जो यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्रीज। जो रिच एंड मैन एंड वुमेन जो है अपने पैसे को कभी कभी लेके जाते थे, कभी कभी वो मोनास्ट्रीज को डोनेट भी किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। जब वो क्राफ्ट पर्सन इतना वो टाइम में प्रेवलेंट थे तो उनका एक रूल्स भी, उनका स्पिनिंग और वीविंग का रूल्स भी था, और ये जो है अर्थशास्त्र बुक में मेंशन किया गया है वो किस तरह के स्पिनिंग और वीविंग किया करते थे। Rules for spinning and weaving. These rules are from the Arthashastra. They describes how spinning and weaving could be done in workshops under the supervision of the special officials. Special officials under में special supervision के साथ जो weaving and spinning किया करते थे, जिसमें है बहुत सारा वुमेन्स को वो डिप्यूट करके रखते थे, जैसे कि widows, young women who were differently abled, nuns, mothers of courtiers, retired women from the temples or servants of the king. Women who have returned from services in temples may be used for processing wool, bark, cotton, and hemp and flax. They should be paid according to the quality and quantity of work. ये जो वुमेन्स को है according to the quantity of work and quality of work उनको सैलरी भी दिया जाता था। Women who are not permitted to leave their home, women who not permitted to leave their home can send maid servant to bring raw materials. वो जमाने में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, वुमेन्स को बाहर जाना अलाउ नहीं था, उससे वुमेन्स को भी क्या करते थे, मेड सर्वेंट्स को भेज के उनका जो रॉ मटेरियल्स को उनके घर तक पहुँचाया जाता था और उन्होंने वो वर्क कंप्लीट करके वापस दे देते थे। और जो वुमेन्स को अलाउ था घर से निकलने का, वो सुबह अपने काम पे आते हैं और शाम होने तक अपना वो घर चले जाते थे, और जो काम ठीक से नहीं किया जाता था उनको भी वो पनिश भी किया करते थे, और मेनली उनका थम्स को जो है काटा जाता था। और इतना वो ध्यान रखते थे कि जो सुपरवाइजर है वो अच्छे से अपने वर्कर्स के साथ पेश करे, और अपार्ट फ्रॉम जो वर्क के सिवा जो भी काम करने से, बात करने से, उनका जो जैसे बोला जाता है कि वर्क प्लेस हरासमेंट, ऐसे करने से उनको सुपरवाइजर को भी पनिश भी किया करते थे। ये सब जो है इनका रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग अर्थशास्त्र बुक में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अरिकमेडो। ये जो अरिकमेडो जो है प्लेस है वो पुदुचेरी में है। बिटवीन 2200 years and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement. Around 2200 years, 1900 years ago, जो अरिकामेडो जो है पॉपुलर कोस्टल सेटलमेंट हुआ करता था, वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड। क्योंकि वो कोस्टल सेटलमेंट है तो बहुत सारे शिप्स आते थे और वो जो है गुड्स को जो अनलोड किया करते थे, और वहाँ पे मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर जो है पाया गया है। आर्कोलॉजिक एविडेंस में एक मैसिव यानी बड़ा ब्रिक्स एक स्ट्रक्चर जो पाया गया है उसको बोलते हैं को वेयर हाउस है। मे बी दैट्स टाइम वो जो है अपने गुड्स को, वो मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए उतना बड़ा वो वेयर हाउस यूज़ किया करते थे। पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, वो मेनली है मेडिटेरियन रीजन को जो पॉटरीज भी वहाँ में पाया गया है, सच एज एम्पोर। इसमें एक मेन पॉटरी है एम्पोर। Two types of Mediterranean pottery was found in the Arikamedu area. The main one is amber and second one is
एरिटेनवेयर। जो एरिटेनवेयर जो है नेम्ड इसमें जो है सिटीज इन इटाली, इसमें एरिटेन जो वर्ड है वो इटाली का एक सिटी का नेम है। इट वॉज मेड बाई प्रेशरिंग वेट क्ले इनटू ए स्टैम्प्ड मोल्ड। ये जो एरिटेनवेयर जो है एक स्टैम्प मोल्ड में ढाई की जगह जो है बनाया जाता था। ये जो एरिटेनवेयर है रेड कलर का वो ग्ले से बनाया गया था, उसका एक पॉटरी मिला है। अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली। ये लोकल पॉटरी भी वहाँ में पाया गया है, बट ये जो लोकल पॉटरी में भी रोमन का जो डिज़ाइन उसमें प्रिंट किया गया है, इससे पता चलता है उनका साथ रोमन कंट्री का साथ उनका बहुत ट्रेड था। और रोमन लैम्प्स भी पाया गया है और रोमन ग्लास वेयर्स जेम्स भी अरिकमेडी में पाया गया है। और नॉट ओनली दैट, स्मॉल टैंक्स भी अरिकमेडी जहाँ भी पाया गया। टैंक, स्मॉल टैंक जो है कहा जाता है कि वो क्लॉथ्स का डाइस यूज़ करने के लिए, उसमें डाइस को डिप करने के लिए वो जो टैंक्स जो है बनाए गए हैं। और नॉट ओनली दैट, लॉट्स ऑफ एविडेंस मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्ट इन ब्राह्मी। जैसे बहुत सारा पॉटरीज का पीसेस मिला है, उसमें जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि है जो बहुत ओल्डेस्ट लिपि है, वो जो तमिल लिटरेचर्स में है उस ब्राह्मी लिपि से है फॉन्ड हुआ है। जैसे कि अरिकमेडी सिटी में रोम के बारे में बहुत सारा मेंशन किया है, जो हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप और डेवलप्ड अराउंड एंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन द गंगा वैली। जब इंडिया में गंगा वैली का जब डेवलप हुआ था, वही टाइम में जो रोम सिटी भी जो है उस जमाने में जो बहुत डेवलप हुआ करता था। जैसे कि रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स। वो जब वो टाइम में जो है लार्जेस्ट एम्पायर्स रोम सिटीज को रूल्स करते थे, उसमें एक मेन एम्पायर है अगस्टस। द एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। जो अगस्टिया जो मेन एक एम्पायर थे रोम में, Augustus was one of the most important emperor. He ruled Rome in 2000 years ago. रोम को जो है 2000 years पहले वो रूल्स किया करते थे। He said that he found Rome as a city of brick and he made it into a city of marble. इनका कहने का मतलब ये था कि जब ये रोम का सिटी इनके पास आया तो ब्रिक से बना था और लेटर जो है इन्होंने वो सिटीज को मार्बल्स में कन्वर्ट किया है। He and later rulers built temples and palaces. ये जो अगस्टिन एम्पायर जब रूल्स किया करते थे, जब जो है वो बहुत सारे टेम्पल्स बनाए और पैलेसेस बनाए एंड एम्पी थिएटर्स भी बनाए। एम्पी थिएटर्स एक ऐसा प्लेस है, ओपन एक एरिया है। एम्पी थिएटर्स मीन्स एक ओपन एक प्लेस है, उसमें जो है ऑडियंस बैठते रहते और कुछ शोज डिस्प्ले होता था और उसमें जो रूफ नहीं रहता था, उस तरह जो एम्पी थिएटर्स बनाए थे। और पब्लिक बाथ यानी विद सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वुमेन। पब्लिक बाथ्स भी बनाए थे और पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए थे, उसमें टाइमिंग जो है सेपरेट था वुमेन और मैन का। एंड ह्यूज एक्वाटेक्स वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर। एक्वाटेक्स एक जो है वो एक वाटर सप्लाई करने का एक टैंक भी वो बनाए और पूरे सिटीज़ को जो एक्वाटेक्स के जरिए जो है वो पानी सप्लाई किया करते थे। और दे वर यूज टू ब्रिंग वाटर फॉर बाथ और फाउंटेन और टॉयलेट्स। उस सिटीज़ का पूरा एरिया के लिए टाउन्स में जो रहते थे और उनके सराउंडेड जो विलेजेस को भी वो एक्वाटिक जो है पानी सप्लाई करता था और टॉयलेट्स के लिए भी और फाउंटेन्स के लिए भी और बाथ्स के लिए भी वो पानी सप्लाई करता था। और जो रोम सिटीज़ को वो खूबसूरत सिटी बनाए गए थे अगस्टिन के एम्पायर के टाइम पे। सम इम्पॉर्टेंट ईयर्स 3000 years ago, beginning of the use of iron in the subcontinent. 3000 years ago जो है आयरन का जो बिगिनिंग हुआ था इन अवर सबकॉन्टिनेंट एंड 2500 years जो आयरन्स का जो इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन जो है 2005 years ago हुआ था। और सिटीज का डेवलपमेंट भी हुआ था और बेंचमार्क कॉइन्स का भी इन्वेंशन जो है 2500 years ago हुआ था। और नेक्स्ट ईयर इज 2300 years। ये जो मेन ईयर है जिसमें कि कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, जो संगम लिटरेचर जो है इस ईयर में जो है फाउंड हुआ था, कंपोज हुआ। संगम लिटरेचर जो है मदुरई में हुआ था। एंड लास्ट ईयर इज 2200 ईयर एंड 1900 ईयर्स। इसमें जो है अरिकमेडी को कोस्टल सेटलमेंट हुआ था। अरिकमेडी जो प्लेस है पौंडीचेरी में, वो कोस्टल सेटलमेंट जो है इस 2200 एंड 1900 ईयर्स में हुआ था। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 97 में दिया गया है।
fill in the blanks. Dash was the word used for large landowners in Tamil. ये तमिल संगम लिटरेचर का जरिए तो हमें पाया गया कि ये जो कौन सा जो वर्ड है लार्ज लैंड ओनर्स के लिए बोला जाता था, जैसे कि सदर्न ग्रुप्स पीपल. फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वेल्लार. एंड सेकंड वन इज द ग्राम भोजगा ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द डैश. जो फिलिंग द ब्लैंक्स में स्लेव्स आएगा. ग्राम भोजगा वो भी तो लार्ज लैंड ओनर्स थे, वो नॉर्दर्न पार्ट्स में विलेजेस में रहा करते थे. वो जो स्लेव्स को अपना कल्टीवेशन के लिए और एग्रीकल्चर फीड के लिए यूज करते थे. और थर्ड वन इज ब्लफमैन वेर नोन एज डैश इन तमिल. ब्लफमैन जो है ऑर्डिनरी पीपल, उनको जो तमिल में क्या बोला जाता था, उलवर. एंड फोर्थ वन इज मोस्ट गृहपतिज वेर डैश लैंड ओनर्स. ये जो गृहपति जो है नॉर्दर्न विलेजेस में पाए गए थे, हैं अभी भी, वो जो है उनको है स्मॉलर लैंड ओनर्स है. ये जो क्या फिलिंग द ब्लैंक्स के स्मॉलर लैंड ओनर्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.